Yes, good morning, both of you. So, today we are going to finish up with these three topics. NDA 3 and 4 I have already covered in the previous videos since you both were absent. So, I shall be repeating this. NDA 3 and NDA 4, these are short topics. And this is also an additional topic, that is issue of development and governance according to NDA 3 and NDA 4. It means the governments which are led by BJP. So we will see what are the type of policies and plans they have adopted. So that is why we will talk about their development policies and their governance pattern. कैसा pattern है, कैसा governance है. We'll see into it. That is regarding NDA 3 and 4. So the chapter's name I have told you many times. Indian politics, trends and developments. This name has been changed. Previous name was recent developments. ठीक है. Political developments. But this is a new name and this is the last chapter, and these three are the last topic of your syllabus now. And I have also covered all the additional topics in all the chapters which are given by the CBSE new pattern. जो new PDF आया था, I have covered all the topics which are given, and these are the two topics which are additional in this particular chapter. So book वाला matter we have already covered. So we are going to do this today. Khushi had attended this class NDA 3, and yesterday both of you were absent. So I have sent this video, but I will cover this again. Okay, so let's start with the NDA 3. I will not take much time to explain this. Okay, because I have already done that. You can see, watch the video. So talking about NDA 3, first of all, आपको अच्छे से पता है, the Bharatiya Janata Party led by Prime Minister Narendra Modi got an absolute majority in the Lok Sabha elections held in May 2014. So remember, whenever we are talking about NDA 3, it means suddenly we are talking about the Lok Sabha elections of 2014. 3 means we are talking about the Lok Sabha elections of 2014. And Khushi will tell me what do we understand by the absolute majority. When 272 votes out of. Yes, this is the exact number you are telling me, but absolute majority means when we get the seats which are more than half. Seats तो change हो सकती है. Suppose there were only 200 seats in the Lok Sabha. So what would be what number I would call as the absolute majority for any party to make their government at the center? 101. If any party is getting this number of seats alone or with a coalition or with the alliance, it means they can form this government at the center. So this desired number, that is more than half, 50% plus 1. Whenever this will be the ratio, that which we will call as the absolute majority, and this is required in the Lok Sabha election to form the government at the center. So when we are talking about this election NDA 3 2014, here Narendra Modi as the Prime Minister of India, during this election, after this election, he got an absolute majority in the Lok Sabha elections held in May 2014, in the month of May. Okay. And after nearly 30 years of Indian politics, a strong government with an absolute majority was established at the center. तो ये इस टाइप की गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आफ्टर 30 इयर्स, ऐसा क्यों लिखा है? Why we are calling it after 30 years? हमने पढ़ा था, if you remember, when we were studying about era of coalition, you must have read also 1989 से, this was the period जब हमने बोला end of Congress system. 1989 से 2004 तक we said कौन सी गवर्नमेंट चली है? Coalition governments. Okay. तो आफ्टर तो ये पैटर्न फिर कब एंड होता है? 2014 मई में. दैट इज आफ्टर 30 इयर्स, अराउंड 30 इयर्स एग्जैक्टली होता है. वी गॉट एन गवर्नमेंट इन द सेंटर व्हिच वाज स्ट्रांग, एंड स्ट्रांग तो ऑलरेडी हुई कोalition, बट दिस वाज, इसमें डिफरेंस क्या था? दे गॉट द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ इट्स ओन, ओन का मतलब मैंने समझाया था क्वेश्चन से. पार्टी होती है, कोalition बना दी हमने, ये कोalition कितनी पार्टी के साथ? बीजेपी का कोalition है, एनडीए का. ओके, तो व्हेन वी हैव टू गेट द व्हेन देयर विल बी लोक सभा इलेक्शंस, हमें कितनी सीट्स लानी है? 272 लानी है. कितने में से? 543 में से. तो बट हियर बीजेपी वाज मैनेजिंग टू गेट द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. इनकी हेल्प के बिना भी बीजेपी को कितने वोट्स मिल रहे थे? मोर देन 272 आराम से मिल रहे थे. इसीलिए यहां पे बोला है आफ्टर 30 इयर्स ऐसा हो रहा था कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आई थी जो अपने पावर पर या अपने दम पर ही सेंटर पे गवर्नमेंट बना पा रही थी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ला करके. फॉर एग्जांपल, इस इलेक्शन में डेटा लिखाया था मैंने, खुशी कितने नंबर ऑफ वोट्स मिले थे इन्हें? सीट्स आउट ऑफ 543 कितनी सीट्स मिली थी? 282. यहाँ पे सलोनी
they got 282 seats. Okay, and with alliance, ये बस बीजेपी की थी, पर एनडीए का जो पूरा अलायंस था उन्हें कितनी मिली थी खुशी? 336. तो ये पूरा क्या था? एनडीए. ठीक है, ये पूरा एनडीए, पर इसमें 282 किसके थे? चलो नहीं, 282 किसके थे? बीजेपी. तो इस रिजल्ट को देखो, इस रिजल्ट की वजह से ही वी आर सेइंग दिस टर्म, यहां पर इंपॉर्टेंट आती है, that after 30 years in Indian politics a strong government with an absolute majority was established at the center. ये 30 years बाद हुआ था. ठीक है, तो ये नंबर याद रखना, उसमें नहीं दिया हुआ पीडीएफ में. सो दो कॉल एनडीए 3 द बीजेपी लेड कोलिशन ऑफ 2000. तो ये हो गया इसका, बाकी नहीं करूंगा, बाकी जनरल टॉपिक्स थी उसके अंदर. ठीक है, नाउ मूविंग टू एनडीए 4. ठीक है, एनडीए 4 इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हिच ईयर? 2000. सलोनी तो क्या तो ये 2019. हाँ, यहाँ पे लिख दो कितना था? 282 आउट ऑफ 543 और एनडीए एज अ होल कितना आया था? 336. तो टॉकिंग ये थे लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2019. ठीक है, रिसेंट, दिस इज वेरी रिसेंट रिव्यू जो हमने देखा 2019 में. ठीक है, तो इसमें देखते हैं इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन द 17th सिंध इंडिपेंडेंस. अगर हम पहले कब हुआ था लोकसभा इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस 19 आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला कब हुआ था? 1952. तो 1952 से अगर हम देखते हैं तो ये जो 2019 में अगर नंबर देखेंगे हम तो ये कौन सा था? 17th बार. तो 17th बार देयर वर लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये 17th था. Once again brought back BJP led NDA. Once ऐसा क्यों लिखा है? Once again brought back, क्योंकि ऑलरेडी 2014 से बीजेपी रन कर रही थी, रन बाय एनडीए. ठीक है, तो 2019 में भी वही गवर्नमेंट वापस आती है, बट इस बार इनके जो सीट्स में ये जो सीट का रेशियो था इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है. ये जो 282 सीट्स थी बस बीजेपी की, इसमें भी इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, देखिए ब्रॉड बैक लेड एनडीए 4, इसको बुलाया हमने एनडीए 4 टू द सेंटर पावर बाय विनिंग more than 350 seats out of 543. यहाँ पे 336 थी ना टोटल, इसमें से अब इस बार कितनी हो गई है टोटल सीट्स इनकी? 350. मोर देन, एग्जैक्टली लिखा है, लिखा है मोर देन. ठीक है, out of 543. The BJP on its own won 303 seats. अब यहाँ पे बीजेपी कितनी लेके आई? 300. देखो सलोनी, पहले था 282, नाउ दे हैव वन 303 सीट्स बस बीजेपी ने, बट एज अ होल यहाँ पर 350 प्लस. पहले 336 आई थी एनडीए की, पर इसमें एनडीए जो पूरी टीम थी उसकी इस बार 350 से भी ज्यादा सीट्स आई है. बट स्टिल यहाँ पे इंप्रूवमेंट आप देखो बीजेपी का, अकेले ही 303 लेके आ रहे हैं. इट मींस अगर वो एनडीए के साथ ना रहे, वो अपना कोलिशन इससे ब्रेक कर ले, अलग हो जाए, स्टिल बीजेपी विल बी एबल टू फॉर्म देयर गवर्नमेंट एट द सेंटर. बिकॉज कितना रिक्वायर्ड नंबर होता है गवर्नमेंट बनाने के लिए? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू 543 विल बी 272 सीट्स, और इनकी कितनी है? 303. तो इनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है. बट स्टिल अभी भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट इसलिए एनडीए अलायंस की. फ्यूचर में हमें नहीं पता है क्या सिनेरियो होने वाला है, तो स्टिल बीजेपी हैज दिस एनडीए अलायंस. बट प्रीवियसली हमने जो कोलिशन देखे खुशी, हमने क्या बोला था? पहले जो कोलिशन होते थे 2014 से पहले, वो कोलिशन होते थे लेड बाय सम नेशनल पार्टी. एक कांग्रेस लीड कर रही है, लीडिंग पार्टी, एक को बीजेपी लीड कर रही है. पर जो हम यहाँ पे ट्रेंड में चेंज देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे लेड नहीं वर्ड यूज करेंगे, हम क्या बोलेंगे? डोमिनेट. डोमिनेट कर रही है यहाँ पे. अगर ये लोग साथ नहीं भी हो, स्टिल डोमिनेट कौन करेगा? बीजेपी, क्योंकि उनके पास एब्सोल्यूट कंप्लीट मेजॉरिटी है. ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया पहले के कोलिशन सिस्टम से और रिसेंट का जो कोलिशन एनडीए का है. तो उसमें ये है कि पहले लेड बाय वर्ड यूज करते थे, अब है डोमिनेट करती है बीजेपी. इसका रीजन हमने देखा लास्ट 10 ईयर में, जो या 8-9 ईयर्स हो गए बीजेपी गवर्नमेंट के, जो हमने इतने सारे प्लान्स पॉलिसीज देखी हैं लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, फॉर चिल्ड्रन, फॉर पुअर पीपल, वेरियस हमने सब्सिडीज देखी हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजें आई हैं, जॉब से रिलेटेड चीजें आई हैं. तो वो सारी जो पॉलिसीज हैं डेवलपमेंट के लिए इजीली पुट फॉरवर्ड कर पा रही है बीजेपी. जो पहले की गवर्नमेंट सोचती थी वो बीजेपी कर पा रही है, क्योंकि उनके पास क्या है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, उनको कोई रोक नहीं सकता है. ठीक है, अगर यहाँ पे होता बस इनके पास 100 सीट्स होती और बाकी सीट्स इनके साथ मिलकर के इन्होंने गवर्नमेंट बनाई होती, तो
जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है इतने फ्रीडम के साथ इंडिपेंडेंट होकर इतने सारे डिसीजंस नहीं ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी पार्टीज के साथ मिलकर उन्होंने ग्रुप बनाया है, उन्हें उनकी बातें भी सुननी पड़ती। उनको क्या सही लगता है, उनके लिए क्या बेटर, हर पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखती, पर यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। उनका अपना ही नंबर इतना है कि उनको बाकी एमपीज एमएलए से कोई सजेशन लेने की जरूरत नहीं है। इनका 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है किसी बिल को पास करने के लिए, किसी भी अमेंडमेंट के लिए, वो ये खुद से कर लेते हैं। इसीलिए बोलते हैं किसी भी गवर्नमेंट को अगर अच्छे से फंक्शन करना है तो ये बहुत जरूरी होता है कि सेंटर में हमारा क्या रहे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी रहे। पहले कांग्रेस सिस्टम था तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, तो जो करना चाहते थे वो कर पाते थे। उस टाइम भले ही इमरजेंसी के टाइम में आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट जाके बहुत काम हुए हैं, बट उसमें अमेंडमेंट्स हो गए कि आगे ऐसा ना हो। बट अब यहाँ पे अच्छे से काम कर पा रहे हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर, हमारे डेवलपमेंट वर्क और गवर्नेंस के वर्क चल रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे भी कोalition गवर्नमेंट होती तो जो जितने डेवलपमेंट वर्क्स हुए नहीं हो पाते, पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है, ये एडवांटेज होता है अगर हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो। तो यहाँ पे इसे रीड कर लेता हूँ, बाकी तो समझा ही दिया है। ठीक है, 1984 में अंदर कांग्रेस चली है। हाँ, बस इसमें एक ही चीज रह जाती है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, जो करंट मैंने उसे खुशी को बताया था, जो अभी 2019 लोकसभा इलेक्शन के बाद जो इंडियन पॉलिटिक्स का सिनेरियो चल रहा है, वी आर कॉलिंग इट पॉलिटिकल साइंटिस्ट या सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं, जो डिटेल एनालाइज करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को, वो इसको क्या बोलते हैं, बीजेपी सिस्टम। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम क्या बोलते थे, कांग्रेस सिस्टम था, क्योंकि उसके सामने कोई अपोजिशन पार्टी नहीं थी जो उसके सामने स्टैंड हो सके, उसको रिप्लेस कर सके। तो अभी भी हम रिसेंटली जो देखे, जो पावर के साथ जो ग्रो कर रहा है बीजेपी इन द वेरियस स्टेट्स, वेरियस सेक्टर्स, बीजेपी का बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत पॉपुलैरिटी है। तो अभी जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और जो सोशल साइंटिस्ट हैं, वो इस टाइम पीरियड को बोल रहे हैं, किसका टाइम चल रहा है, किसका सिस्टम चल रहा है, बीजेपी सिस्टम। आप सारी गवर्नमेंट देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबलीज देखिए, ज्यादातर किसकी होती जा रही है, बीजेपी की होती जा रही है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं अभी, बीजेपी सिस्टम। सो दिस यूपीए 1 और यूपीए 2 का आपको पता है कब आएगी, इससे पहले अगर हम देखें 2004 में, 2004 में और 2009, याद रखना, ये यूपीए 1, ये यूपीए, सलोनी किसकी होती है, यूपीए कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस से 2009 तक, ठीक है, 9 से 14 तक, फिर 14 से एनडीए आ गया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनडीए 3 एंड एनडीए 4। बाकी जो मैंने नोट्स दिए थे या पीडीएफ सेंड की थी, इसको भी सेंड कर देना, एक बार रीड कर देना, आंसर देने में इजी होगा, बिकॉज़ आई थिंक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। जब उन्होंने पीडीएफ अलग से दिए ये टॉपिक्स, तो डेफिनेटली इससे दे विल पुट फॉरवर्ड द क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट भी है, हमारी करंट जो गवर्नमेंट है उसके बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है, दे विल चेक दैट। और स्पेशली मुझे लगता है इस पार्ट से, नाउ व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आएंगे। तो जो मैं आपको यहाँ पे प्लान्स और पॉलिसीज बताऊंगा, ये थोड़ी सी डिटेल स्टडी घर पे करना आप लोग। सो ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। ओके खुशी, अब ये वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ये एडिशनल टॉपिक है, इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। So a major change in Indian politics after 2014 is the shift from caste and religion based politics to development and governance. तो एक हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, एक चेंज देखते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2014। तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, तो जब भी हम बात करेंगे इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखोगे, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक ट्रांजैक्शन, कंप्लीट चेंज देखते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में अगर हम बात करें डेवलपमेंट और गवर्नेंस की। वो चेंज क्या है, प्रीवियसली जो हमारी पॉलिटिक्स थी वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन। कुछ एग्जांपल्स निकाल सकते हैं हम बात कर रहे थे ओबीसी की, एससी एसटी की बातें कर रहे थे हम, ठीक है, हम रीजन्स की बात कर रहे थे, ग्रुप्स की बात कर रहे थे, सोसाइटी की बात कर रहे थे, बट नो गवर्नमेंट वाज टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। रीजन भी कौन सी गवर्नमेंट्स थी, कोलिशन गवर्नमेंट्स थी। जब कांग्रेस सिस्टम था तो कांग्रेस इतनी पावरफुल थी, इतनी डोमिनेंट थी, अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, ठीक है, किया है उन्होंने भी, बट बीच में कोलिशन एरा जो चला है वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पाए, क्योंकि किसी एक पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होती थी। तभी देखा हमने कितनी जल्दी डिसॉल्व हो जाती थी गवर्नमेंट्स। अभी हो रहा है लास्ट कुछ ईयर से नहीं हो रहा, जब से यूपीए 4-9 यहाँ पे कोलिशंस बने इनके, तब से नहीं हो रहा है फिलहाल। बट उससे पहले जितने कोलिशंस बने 2 ईयर के लिए गवर्नमेंट बन गया, आप लोगों को लर्न करने में कितनी दिक्कत हो रही होगी ना, ऐसा हो गया तो डिसॉल्व हो गई गवर्नमेंट, फिर न्यू यूपीए गवर्नमेंट आ गई, जनता पार्टी आ गई, नेशनलिस्ट पार्टी आ गई, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, तो डिफरेंट पार्टीज आती रही 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए। ये प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से डेवलपमेंट और गवर्नेंस पे किसी का ध्यान नहीं गया। बेसिकली जो हमारी कंप्लीट पॉलिटिक्स थी किस पे बेस्ड थी, कास्ट और रिलीजन बेस्ड के इश्यूज पे ही चल रही थी। ओके,
विद द प्री इंटेंडेड गोल सबका साथ सबका विकास। सुना होगा, ये रिसेंटली 2019 से चल रहा है, मोदी जी का मजाक भी बनाते हैं लोग, ठीक है। द एनडीए 3 गवर्नमेंट, तो ये सबकी बात हो रही है 2014 की, सबका साथ सबका विकास, ये एक स्लोगन आया था या एक एजेंडा होता है किसी गवर्नमेंट का, तो ये एनडीए 3 गवर्नमेंट का एजेंडा था जिन्होंने स्टार्ट किया था ये। सेवरल सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स, तो 2014 लोकसभा इलेक्शन जीतते ही नरेंद्र मोदी जी ने फोकस किया डेवलपमेंट और गवर्नेंस पे, अदर देन कास्ट बेस्ड रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स को हटा करके उन्होंने हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम किया है। जो इतनी कंट्रीज घूमते हैं वो घूमते नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का, हम ग्लोबलाइजेशन वर्ड पढ़ते हैं ना, कैसे हम फॉरेन कंट्री के फॉरेन हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, हम कैसे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, वो यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे बढ़ता है। तो इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए, इन द ऑल होल वी कैन से, किसके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए हमारी कंट्री के लिए, वो ये सब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2014 लोकसभा इलेक्शन के बाद बहुत सारी उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स स्टार्ट की टू मेक डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस एक्सेसिबल टू मासेस सच एज, उन्होंने इस तरह की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज को स्टार्ट किया डेवलपमेंट के लिए, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि पहले गवर्नमेंट भी पॉलिसीज थी, पहले भी, अगर हम पहले के गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज मैं आपसे पूछूं, आपको जल्दी से पता ही नहीं होगी। नरेंद्र मोदी की किसी बच्चे से पूछो, जनधन योजना, ये आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सब लोगों को पता है, कौन लोगों, क्यों? क्योंकि पहले भी होती थी डेवलपमेंट पॉलिसीज होती थी, बट वो लास्ट सब कोने कोने तक नहीं पहुंच पाती थी। तो अंडर बीजेपी, अंडर एनडीए 2014 के बाद जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज आई हैं, उससे ट्राई किया है कि रूरल एरियाज, पिछड़े से पिछड़े इलाकों तक इन पॉलिसीज को, इन जो फैसिलिटीज है उन तक पहुंचाई जाए जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये सबसे एक एम था कि दूर तक पहुंचाना लोगों तक, ठीक है। बस ये नहीं कुछ लोगों तक पहुंचा हो गया। जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला, ये क्या है, सिलेंडर वगैरह सब्सिडीज में देना, गैस सिलेंडर, गैस भी जो होता है, जो बहुत रूरल एरियाज में लोग यूज करते थे, लकड़ी और उस टाइप से चीजें, उनको ये फ्री में अवेलेबल कराना। तो ये एक पॉलिसी थी, ठीक है, योजना बोला। स्वच्छ भारत अभियान, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, लास्ट एक्टिविटी हुई थी जहाँ उन्होंने जाकर क्लीन किया, 2 अक्टूबर को करते हैं सब लोग। तो ये भी एक हमारे कंट्री को क्लीन बनाने के लिए, ठीक है। जनधन योजना, बैंक में अकाउंट्स खोले गए बहुत पुअर लोगों के, जिसमें कुछ अमाउंट आने लगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा। फसल बीमा क्या हो गया, पहले किसान होते थे सुसाइड कर लेते थे, अगर क्रॉप फेलियर हो गया, बारिश नहीं हुई या फ्लड आ गया या बहुत तेज तूफान आ गया, उनकी क्रॉप्स टूट गई, उन्होंने ऑलरेडी लोन ले रखा, लोन लेकर उन्होंने क्रॉप्स लगाई है कि क्रॉप से जो आउटपुट आएगा वो उसको पे करेंगे और बाकी प्रॉफिट अपने पास रखेंगे। बट अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है तो उसके पास पूरे साल में सर्वाइव करने के लिए, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए कुछ नहीं बचता है। तो इस केस में क्या होता था, फार्मर्स बहुत सारे सुसाइड कर लेते थे। तो उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया, उनको किस चीज की फैसिलिटी दी, इंश्योरेंस की। जो उनकी क्रॉप लगी है उसका इंश्योरेंस हो जाता था, ठीक है। अगर उनकी क्रॉप खराब होती है तो उन्हें वो फीडबैक मिल जाता था अमाउंट वापस, ठीक है। इस टाइप की देश बढ़ाओ, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या है, मेडिकल फैसिलिटी है। इसमें ये होता है कि हर किसी को 5 लाख तक का एक अमाउंट दिया जाता है जिसमें हम अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द, अगर हम पॉवर्टी की बात करें इंडिया में, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी पॉवर्टी के नीचे है, तो दे रिक्वायर हेल्थ फैसिलिटीज। क्योंकि हमारा जो, अगर आप हेल्थ केयर देखोगे बहुत एक्सपेंसिव है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को उस टाइप का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो एक कार्ड शुरू किया गया है आयुष्मान भारत, थ्रू विच पीपल, हमारा आधार कार्ड एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर लिंक्ड और हमारा ट्रीटमेंट फ्री होता है, गवर्नमेंट करती है। दीज आर सम ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज which were run and established by NDA 3 after 2014, and you know about it because उन्होंने कोशिश की है that these socio-economic policies हैं जो should be accessible to each and everyone, especially the most needy people, because previously governments used to implement few policies but those were applicable to only certain population. इतनी population है हमारी, okay, सेंट्रल में गवर्नमेंट है, इसके आसपास एरिया में तो लोगों को बेनिफिट मिल गया इसका, ठीक है। बट जो ये रीजन्स है, बैकवर्ड रीजन्स है, इन तक ये पॉलिसीज का जो फायदा है वो नहीं पहुंच पाता था। तो इफ यू सी द डिफरेंस, एनडीए 3 ने ये कोशिश की है कि दिस पॉलिसी शुड बी इंप्लीमेंटेड इन द फार रूरल एरियाज और बैकवर्ड एरियाज, ठीक है, जहां एससी एसटी एसटी ट्राइब्स वगैरह रहते हैं उनको भी, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज है अगर आपने पढ़ी हो। All these schemes intended to take administration to the doorstep of the common man. अब इन जो पॉलिसीज के थ्रू, जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज के मैंने नेम्स बताया आपको, फॉर एग्जांपल 5-6 का बताया, इसके थ्रू हम जो हमारी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको कहां तक जोड़ रहे थे, डोर टू डोर, डोर स्टेप, लोगों के घरों से
जोड़ रहे थे इन पॉलिसीज के थ्रू। अब हर किसी को मोदी के बारे में पता है, बच्चे बच्चे को पता है ना, पहले प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में इतने नॉलेज नहीं होती थी, चाहे मोदी या कुछ पता हो ना पता हो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बट हर बच्चे को आप पूछो हमारे कंट्री में नरेंद्र मोदी पता होगा, बीजेपी पता होगा, ठीक है, कांग्रेस के बारे में पता होगा। तो रीजन भी इन टाइप की जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज आई हैं उसके बारे में जो रूरल एरियाज में भी जो लोग रह रहे हैं, दोज आर अनएजुकेटेड पीपल, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि ऐसी पॉलिसी आई, अगर आप ऐसा कराते हो तो आपको ये फायदा होगा, ऐसा उन तक इन्फॉर्मेशन जाने लगी है, फ्लो करने लगी है। जब इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही है तो इसमें कहीं ना कहीं किसका रोल है, गवर्नमेंट का रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ट्राई कर रही है हम डोर टू डोर तक पहुंचे, किसके थ्रू, सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू, ठीक है। तभी लिखा देखिए ऑल दीज स्कीम्स इंटेंडेड टू टेक administration means government to the doorstep of the common man by making the rural household particularly the women। बेसिकली फोकस किस पे किया, जो वुमेन की कंडीशन हमारी कंट्री में अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो काफी बेकार थी, तो उनकी पोजीशन को थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज लाई गई हैं। रियल बेनिफिशियरीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, तो यहाँ पे कह रही है जो रियल बेनिफिशियरीज होना चाहिए, जिनको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचना चाहिए हमारी गवर्नमेंट सेंट्रल स्कीम्स का, सोशल इकोनॉमिक स्कीम्स का, वो किसको पहुंचना चाहिए, वुमेन्स को और रूरल एरियाज को, सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्बन एरियाज में तो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर देते हैं दिखाने के लिए गवर्नमेंट्स, ठीक है, पर ये काम अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबको एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इट्स लाइक अ चेन, ठीक है। अगर आज यहाँ पे कोई पॉलिसी रन हो रही है हमारे जोलीग्रांट में तो नरेंद्र मोदी जी खुद नहीं आएंगे, तो इट्स लाइक अ चेन, वहां से स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे अपने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, फिर हम कैसे अपने लोकल गवर्नमेंट्स में इस चीज को रन कर रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एम ये था कि जो हमारे सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज हम चला रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, उसका फायदा बेनिफिट्स किसको पहुंचे, रूरल एरियाज को पहुंचे, जो फॉरेस्ट में ट्राइब्स वगैरह उनको पहुंचे और वुमेन्स को पहुंचे, ठीक है, पहुंचे हुए, क्योंकि उनको पहुंच गया तो तभी हमारी कंट्री का डेवलपमेंट और ग्रोथ हो सकता है। The success of these schemes, so when we talk about success, कोई स्कीम चली, कोई डेवलपमेंट पॉलिसी चली, उसकी सक्सेस हम तभी बोल सकते हैं, could be seen from the result of 2019 लोकसभा। तो जो ये 2014 हमने स्कीम्स के बारे में पढ़ा, मैंने बताया, डोर टू डोर पहुंचाया, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, बेनिफिट्स मिले, ठीक है, उसको हमें कैसे हम उसका कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पीपल लाइक इट और पीपल डिड नॉट लाइक इट, सबको फैसिलिटीज मिली, अवेलेबल हुई या नहीं हुई, हाउ विल वी कैलकुलेट, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसको, सो वी कैन कैलकुलेट इट बाय द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2019, जिसका रिजल्ट क्या था, दिस इज द रिजल्ट। अगर यहाँ पे ये पॉलिसी सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रॉपर्ली रन नहीं हुई होती तो कैन यू बिलीव they would have got alone as a single party 303 seats in the Lok Sabha elections? Never, it cannot, because this is such a huge number if you see it according to the Lok Sabha election, जहाँ पर एक single party 272 seats नहीं ला पा रही थी कोई भी 30 years से, there is a party now which is getting the absolute majority and more than that of 303, तो इसका आउटकम कहाँ से आया होगा, after the policies which were run by the NDA government in 2014, तो यहाँ से बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉपुलैरिटी और बेस बन गया एनडीए गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से इन 2019 दे गॉट सच अ गुड पॉपुलैरिटी एंड सच अ गुड नंबर एट द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड होपफुली इन 2014 व्हिच वी आर हैविंग स्टिल द ट्रेंड इज सेम, हम इस सिस्टम को क्या बोल रहे हैं, बीजेपी सिस्टम, and if we continue with the same performance again you will see such type of data in the upcoming 2024 Lok Sabha elections, okay, and at state assembly elections जो होते रहते हैं कुछ मंथ में, कभी किसी स्टेट में, कभी वेस्ट बंगाल में हुआ था, कश्मीर में, ठीक है, बिहार में हुआ था, तो उसका रिस्पांस हम देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी का इन्फ्लुएंस जो है, ठीक है, खत्म, समझ आया। तो हम इसकी स्कीम्स को जब हम रेक्टिफाई करते हैं कि वो पॉपुलर थी, उससे लोगों को फायदा हुआ या नहीं हुआ, तो हम किसके रिस्पॉन्स से पता चलता है, 2019। अगर ये वेस्टेज ऑफ सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता जहाँ पे लोगों से वोट नहीं करते, ठीक है, और 2014 में फिर से देखेंगे। तो लोकसभा इलेक्शंस वर द वोटर अक्रॉस स्टेट, अच्छा उस पॉइंट को पढ़ रहा हूँ, द सक्सेस ऑफ दीज स्कीम्स कुड बी सीन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ 2019 लोकसभा इलेक्शंस वेयर द वोटर्स अक्रॉस स्टेट्स caste, class, communities, gender and religion brought back the issue of development and governance. Here एक important point आया when we are talking about the Lok Sabha election of 2019, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि हिंदूज वोट कर रहे हैं, अगर हम डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट क्लासेस के लोग, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग, डिफरेंट जेंडर के लोग, ऐसा नहीं कि मेल्स कर रहे हैं फीमेल्स कर रही हैं, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन के लोगों की तरफ से सबकी तरफ से सपोर्ट मिला है। अगर सबकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता तो अगर बस हिंदू बेस्ड होता तो उसे इतने ज्यादा सीट्स नहीं मिल सकती थी,
तो हर कम्युनिटी ने, हर जेंडर ने, हर पार्ट ने हमारी कंट्री के सपोर्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। अगर बीजेपी को सपोर्ट किया है, एनडीए अलायंस को सपोर्ट किया है, इट मींस किसको सपोर्ट किया है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस जो पॉलिसीज लाए थे उसको सपोर्ट किया है लोगों ने, क्योंकि वो किसी हमारी कंट्री के किसी एक पार्ट को फोकस नहीं कर रहा था, किसी एक सोसाइटी को फोकस नहीं कर रहा था। जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज आई है, जितनी डेवलपमेंट पॉलिसीज 2014 में आई है, पूरी कंट्री के लिए थी, एज अ इक्वल, सबको इक्वली ट्रीट किया था, किसी एक पे फोकस नहीं किया था, ठीक है। सो अंडर द बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट characterizing the current change with the सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस टाइप का भी चल रहा है। सबका साथ चाहिए, सबका विकास भी होगा, सबका विश्वास भी चाहिए, तो ये इस टाइप का चल रहा है। अगर हमारा रीसेंट, तभी पहला चैप्टर रीसेंट डेवलपमेंट्स था, तो हम उसको पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स जो चल रहा है, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स जो चेंजेस आ रहे हैं, ये ट्रेंड्स है ना, नया ट्रेंड आया 2014 से 30 इयर्स के बाद, और ये डेवलपमेंट्स आ रहे हैं इस लोकसभा इलेक्शन के बाद। इससे पहले द इंडियन पॉलिटिक्स शुड वर समथिंग एल्स व्हिच वाज बेस्ड ऑन रिलीजन एंड कास्ट। कोलिशन गवर्नमेंट थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, स्टेबल नहीं थी, 1 ईयर कर रहे हैं, 13 मंथ्स कर रहे हैं, डिसॉल्व हो जा रही है। तो जब इतना कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कोलिशन पार्टीज के बीच में, अपोजिशन पार्टीज के बीच में, डेवलपमेंट ब्लॉक पे कभी कोई फोकस कर पाएगा? यहाँ पे फ्रीली उसको पता है मेरे पास इतना नंबर है 5 ईयर के लिए, उसको कोई छेड़ नहीं सकता है। तो फ्रीली, इंडिपेंडेंटली, विद फ्रीडम, this government, NDA government, which is dominated by BJP, can run the country to the path of development and governance। ये तभी हो सकता है अगर हमारे पास सेंटर में क्या है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। इसके बिना भी हो सकता है, पर यहाँ पर बहुत अच्छे से हो सकता है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड these 3 topics, these are very important।